everyone, this is Rafia Mudassir from the platform of Nurul Huda Education Foundation, and I'm here with the topic Reflection with Rafia. And today Umar Laifwala from Muhammad Umar Usman, his full name, known as Umar Laifwala on Facebook. He will be joining me. He's from Multan. He's a corporate trainer and a coach and a counselor. So I hope he sees me and joins me. So we have been talking about reflection, how to do reflection, how to, and I have also shared some tools with you people. So today I will be actually finding out from Umar how he reflects and how does he find meaning out of his own. So I'm just waiting for Umar. Umar, if you see me, kindly join me. I'm going to send him a request because I don't see him here. Umar, if you are seeing me, please join. So I'm waiting for Umar to join me. And as I said, we have been talking about reflection. So the topic that we were discussing is reflection. I talked about the areas where we never reflect and the problems that we face when we are not reflecting on our actions, on ourselves, how we are growing, how we are developing. So today on the same topic, Umar is going to give his opinion. I'll just send him a message so that he can join. I just spoke to him, but I don't think that he knows that I'm online. So sharing the link with him that he can join. If you have any questions related to reflection, you can ask here. You can look at, okay. Yes, so just sharing this with Umar. So Umar is going to join. As soon as he joins, then we will speak to him. Okay, so in the previous two videos, what I discussed was that reflection is a conscious, structured process whereby you sit with the aim of with the proper aim that you are going to reflect on your experiences. You are going to conclude. You are going to see well, and what are the changes that you need to make. Umar is being added, so as soon as he joins, we will talk to him. So this is what we discussed. We discussed about how reflection helps us in our personal lives. It actually develops an attitude of gratitude. It helps you to know your weaknesses. It helps you to analyze what are the changes that you need to make in your personality, in your thinking, in your attitude, or maybe the way of working, so that you can get better results and reach your goals. And of course, as I just repeated, reflection is a structured step-by-step process. It has to be done in a structured way, then only it will bear fruit. Then only you will be able to analyze yourself better.
So Umar is being added. I'll just try adding him up again. अस्सलाम वालेकुम उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। क्या हाल है मैम, आपके ठीक हैं? मैं फर्स्ट क्लास, आप बताओ। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। ओके उमर, आपने मेरे पिछले 2 देखे होंगे वीडियोस, तो आपके ख्याल में रिफ्लेक्शन क्या है? पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आपसे मैं कहूंगी कि अपने किसी एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करें और बताएं कि किस तरह से आपने अपने आप को एनालाइज किया और चेंज किया। बिकॉज पीपल समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्ट करने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि आप करना क्या है, एंड देन दे आर एक्चुअली जस्टिफाइंग व्हाट वी डू इज रिफ्लेक्शन तो कर लिया, हमें पता भी चल गया कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग करते क्या है कि हम कहते हैं कि अच्छा ये इस वजह से हुआ, बिजली नहीं आ रही थी, मेरा प्लान फेल हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, बट वी एक्चुअली डू नॉट गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डू नॉट ट्राई टू एड्रेस इट। सो ये सारा करने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल सबसे चीज मिसिंग है कि हम सोच विचार नहीं करते, हम चीजों का तज्जिया नहीं करते, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते अपनी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, अपने ऊपर भी कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, बनने जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई देन वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन डेवलपमेंट। सो पहले तो आप एक्सप्लेन करें, आपके ख्याल में रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज बिल्कुल रिफ्लेक्शन? ऐसे ही। अच्छा, एक चीज जो मैं हमेशा अपने ग्रेजुएट से शेयर करता हूँ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो हमेशा मेरे जहन में जब भी रिफ्लेक्शन की बात आती है ना, तो एक चीज मेरे जहन में हमेशा आती है। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं ना, कि जी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमें, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें लर्न करने के साथ अनलर्न करना भी आना चाहिए। मैं हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर भी लोगों से शेयर करता हूं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीजों को सीखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमें जो हमने सीखा हुआ है ना उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। इसलिए मैं अपने ग्रेजुएट्स को कहता हूं कि प्लीज ट्राई टू लिसन वट एवर अराउंड यू। जो कुछ आपके इर्द गिर्द मौजूद है उसको सुनना सीखें। जब हम सुनते हैं ना, तो एक न्यू वर्जन की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं, हम कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो अपनी तरफ से हमें एक्सेप्टेबिलिटी के साथ साथ अनलर्न करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लाइफ टफ गुजरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम किया, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ काम किया। हर असल में मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो बड़े ही किस्म के रंग बिरंगे किस्म के लोग हमें मिलते हैं। तो एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी कि जो कुछ सीखा हुआ है ना वो हमेशा गलत ही है। और मैं अपने ग्रेजुएट्स को हमेशा ये बात कहता हूं कि यार, आप जो चीज आपने लिखी है ना वो हमेशा ठीक है, यहां तक कि आप उसको जस्टिफाई कर दो, यहां तक कि आप बता दो कि यार इसके बैक एंड पे ये रिसर्च मौजूद है, या ये इसके पीछे थ्योरी मौजूद है, या ये इसके पीछे नॉलेज मौजूद है। तो हम लोग हमेशा एक चीज ये देखते हैं कि हम लोग मार्केट के अंदर जाते हैं और मार्केट में जाके लोग हमें सिखा रहे होते हैं कि यार ये भी एक तरीका था जिसके थ्रू आप और बेहतर परफॉर्म कर पाते थे। तो जितनी मर्जी रिसर्च कर ली, जितना मर्जी नॉलेज गेन कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन आज भी एक आम सा बंदा, एक रेडी वाला भी हमें सिखा जाता है कि यार ये भी कुछ हो सकता था और बेहतर। तो रेडी नॉलेज का वाले की कोई बात पैरामीटर नहीं है, किसी बंदे से रिलेट नहीं करता किसी। समटाइम्स बच्चों से उम्र हम सीखते हैं। मुझे याद है कि वन ऑफ द कोचेस वाज एक्चुअली टॉकिंग टू माय चिल्ड्रन, तो वो बता रहा था अपना कुछ ना, मेरे बेटे ने पूछा आपको क्या पसंद है, उसने कहा कि मुझे घड़ियां पसंद हैं, तो उसने कहा अच्छा आपने कौन सी घड़ी ली, तो ही सेड 2.5 लाख की ये वाली घड़ी ली है। तो मेरा बेटा कहता है आप तो बेवकूफ हैं, 2.5 लाख की घड़ी कौन पहनता है, टाइम तो 500 की घड़ी भी बता देती है। आई वॉज शॉक टू हियर हिज कॉमेंट, और मैंने कहा ऐसी कॉन्फिडेंस से उसने, और उसने बोला, एंड ही वॉज राइट एक्चुअली। सो वो हम लोग अपने शो ऑफ में और बहुत सारी चीजों में ऐसे काम कर जाते हैं जो उस वक्त हमें मतलब अपने शौक पूरा करने के लिए कर लेते हैं, बट द फैक्ट इज कि 500 रुपए की घड़ी भी टाइम वही बताएगी जो 2.5 लाख की बिल्कुल। घड़ी बताएगी। और ज्यादा अच्छा दिखाती है मेरे ख्याल में, क्योंकि फिक्र नहीं होती है बंदे को कि यार गुम हो जाएगी। हाँ, गुम भी हो जाए, चोरी हो जाती है, छिन जाती है। कराची में तो गन पॉइंट पे छिन जाते हैं। मेरे मियाँ तो जो है वो कुछ कहते हैं, क्या करते हैं, ही एक्चुअली एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ ज्वेलरी आई एम वेयरिंग, एंड वो कहते हैं कि आज ये
जो है ना 1 लाख रुपए लेके जा रही है पहन के जा रही है। सो मैंने तो पेन ही छोड़ दी है असल जी। में एनवायरनमेंट के ऊपर है ना, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। नहीं, आजकल तो वैसे भी फैशन हो गया है ये जो अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो बड़ा इनो है। लोग जो नहीं है वो वही ना, चेंज तो करते रहते देन हैं, आई आर्टिफिशियल यूज सेड करते हैं काफी ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो इसमें भी मैंने रिफ्लेक्शन किया ना बैठ के, उसको मैं बताती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई मेरे वालदैन ने जो दी वो लॉकर में डल गई, जो आपकी तरफ से मिली वो लॉकर में डल गई, तो मुझे मिला क्या पहनने के लिए? व्हेन आई कांट वेयर एनीथिंग, उससे बेहतर है उसको बेच दें, वो पैसे दे दें, इन्वेस्ट कर लूं। तो कहते हैं नो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन। यानी कि द ज्वेलरी दैट यू गेट ऑन योर वेडिंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स और एनीवन, that actually becomes an investment for the future for children। और आप मतलब अपने आप को बड़ा खुश ना हो सोच के कि आपका आप पहन सकते हैं। एनी हाउ, सो आपका जो है सबसे बहुत लंबी प्लानिंग की है सर ने टर्निंग वैसे। पॉइंट इन योर लाइफ, रिफ्लेक्शन आपने किया तो एनी टर्निंग पॉइंट दैट you feel कि वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, just because of the reflection, whether it was guided by a mentor or you yourself reflected and made a change, तो वो शेयर करें। मैंने अपनी जो बिजनेस का कैरियर है ना, वो मैंने तकरीबन 7th 8th में मैंने स्टार्ट कर दिया था। अपना सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा कि यार मुझे खुद अपनी जो डेली मेरा खर्चा है ना वो मुझे उठाना चाहिए, क्योंकि बाइक पास थी तो डिफरेंट जगहों पर जाता रहता था। गेम्स का शौक था, कंप्यूटर का शौक था, तो कंप्यूटर से रिलेटेड शुरू किया। गेम की सीडीज ले लेता था और उसको कंप्यूटर से ही राइटर सीडी राइटर से कॉपी करके और फिर सेल करने का एक माइंड में आया कि यार ये भी हो सकता है। तो उसको मैंने शुरू किया और मैंने तकरीबन अपने फर्स्ट ईयर एफएससी फर्स्ट ईयर तक मैंने उसको लेकर चला। तब तक मैंने सीडी राइटर और काफी कुछ इक्विपमेंट काफी कुछ उससे मैंने परचेज कर लिया था। तो मैं हम्म। सीडीज राइट करता और सेल करता, राइट करता और सेल करता। तो उस वक्त फिर इंटरनेट का बूम आया उतने ही कुछ उन्हीं टाइमों के अंदर ना, कि इंटरनेट जो है वो असेसेबल हो गया लोगों के लिए, ऑनलाइन डाउनलोड करना आसान हो गया। वहां पर मैंने सीखा कि मैंने बिजनेस जो है वो एक डाइवर्जन एक फोकस के साथ मैंने किया, सिर्फ एक फील्ड के अंदर। मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं इसके अंदर दो तीन चीजें और मैं मिक्स कर लेता तो शायद हो सकता था और बेहतर मैं परफॉर्म कर जाता। मैंने वहां पर फिर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जो मैंने सेविंग्स की हुई थी वो मैंने 2 3 4 फील्ड्स के अंदर मैंने उसको इन्वेस्ट किया। मैंने ये देखा कि इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने के बाद मैं ज्यादा सिक्योर अपने आप को फील करना शुरू कर दिया। मार्केट बड़ी हुई, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ा। उससे मैंने एक चीज और रियलाइज की कि यार मेरा नॉलेज जो है वो बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए, या मेरे पास कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो उससे ज्यादा करीब तक मुझे ले जाए। ये तकरीबन आप ये समझ लें कि मैंने एफएससी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने बीए किया विद आर्ट सब्जेक्ट्स। तो और मैंने उसके अंदर ज्यादा फोकस बिजनेस को किया हुआ था, इसलिए मैंने बीए की तरफ मैं चला गया। बीए मैंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इस चीज के अंदर इस कश्मकश का था कि यार और कौन सी ऐसी डिग्री हो सकती है जो मुझे बिजनेस से रिलेटेड जो है वो नॉलेज दे सके, या मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर मैं काम कर सकूं, या मैं किस तरीके से मार्केट के अंदर मैं और ज्यादा अपने आप को किस तरीके से यूजफुल बना सकता हूं। एक टर्निंग पॉइंट वो आया कि फिर मैंने वहां पर एमबीए के तरफ जाने का मैंने इरादा किया, और 2012 के अंदर मैंने एमबीए अपना स्टार्ट कर दिया था यहाँ मुल्तान में। एमबीए जब मैंने शुरू किया फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, मुझे ऐसा लगता था कि यार वो जो मार्केट में मेरे पास टफ क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उन सब चीजों के बारे में मैं पढ़ रहा हूं। यानी कि हर सब्जेक्ट मुझे एक नई रियलाइजेशन, एक नया टर्निंग पॉइंट, एक नई रिफ्लेक्शन दे रहा था। और मेरी जितनी रिसर्च थी मार्केट से, वो कहीं ना कहीं कभी सही साबित होती थी, कहीं गलत साबित होती थी। तो यूं समझ लें कि 6 सेमेस्टर, जो 7 सेमेस्टर में पढ़ा, 7 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में मेरे पास हर सब्जेक्ट के अंदर एक रिफ्लेक्शन था कि एक तरफ मेरा अपना एक्सपीरियंस था और दूसरी तरफ मेरे पास बुकिश नॉलेज था, जो काफी ज्यादा एक दूसरे से जो है वो कंट्राडिक्ट करता था। और मुझे लगता था कभी कभी कि यार मैं तो बड़ा नुकसान करता रहा हूं अपना। और आप ये देखें कि जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वापस मार्केट की तरफ मूव किया, मैंने एक चीज देखी कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर परफॉर्म करने वाले लोग बहुत कम है। मैंने
टोटल प्रोडक्ट मार्केट से सर्विस मार्केट के अंदर आने का इरादा किया कि मैं प्रोडक्ट्स तो मैं सेल करता ही था, अब मैंने प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी, अब मैंने सर्विसेज सेल करनी है। अब मैंने अपने ग्रेजुएट्स के लिए काम करना है, अब मैंने अपनी मार्केट के उन लोगों के लिए काम करना है जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मार्केट में नहीं आ पाते। तो उसी की एक एक ख्वाब की ताबीर है। आई एम जो मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो एक ख्वाब ही था, जिसके बारे में मैंने सिर्फ एक दिन पहले सोचा और नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका लोगो डिजाइन कर चुका था, उसकी प्रिंटिंग करवा चुका था, और मतलब काफी चीजें मैंने उसके बारे में सेट करके मैंने एक जगह भी सिलेक्ट कर ली और मैंने ऑफिस खोल के मैं बैठ गया तकरीबन 2-3 दिन के अंदर। तो मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है कि मेरे ख्वाब जो आता है ना मुझे, मैं उसको फौरी इंप्लीमेंट करता हूं। मुझे ये नहीं होता कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा। आज ख्वाब आया है, आज उसका प्लानिंग हो गई, उसके ब्रोशर छप गए, उसके कार्ड छप गए, उसकी प्रिंटिंग हो गई और वो मैंने खोल के मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार ये क्या पूरा हुआ है या नहीं हुआ। अब मैं एंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो करवा रहा हूं उसमें भी मैं सिर्फ एक ही बात ग्रेजुएट्स को कहता हूं कि यार अल्लाह का वास्ता है, जो ख्वाब देखते हो उसको कोशिश करके देखो। आपकी जिंदगी बेहतर होती है या नहीं होती ये तो आपके हाथ में है, लेकिन आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को कुछ बेहतर रास्ता नजर आ जाएगा। तो एक ये भी एक चीज जी। है। तो ये बहुत सारी रियलाइजेशन है। तो ये मैं, तो आपने वो हाँ, टॉपिक छेड़ दिया कि मौके का मैं फायदा मतलब उठाऊंगी। बोलता जाऊंगा लेकिन टॉपिक खत्म नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको रोकती हूँ ना, अब आप सोचेंगे मेरे सवाल को और फिर जवाब देंगे। आज एक साहब ने मुझे मैसेज किया एंड ही सेड कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लें। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा आप करते क्या हैं? तो ही सेड कि मैं मैकडोनल्ड्स पे सुपरवाइजर हूँ। मैंने कहा अच्छा कितना पढ़ा है? तो बीए किया हुआ था उन्होंने। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप क्या कहते हैं, अपने उम्र की फ्रेंड ढूंढें। आपको फ्रेंड चाहिए, मतलब ये उन्हें फीमेल फ्रेंड चाहिए थी। आई आई एक्चुअली, उसने जब कहा ना मुझे फ्रेंड चाहिए, कोई मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैंने जो मेरे साथ यंगस्टर्स हैं मैंने उधर डायरेक्ट कर दिया। तो उसने दूसरा मैसेज मुझे किया कि नहीं कोई फीमेल फ्रेंड बताएं वरना आप मेरी बन जाए फ्रेंड ना। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें फीमेल फ्रेंड क्यों चाहिए? कहता आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। सो देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिम, टोल्ड हिम कि भाई अल्लाह के बंदे, पहले तुम कुछ बन तो जाओ। अब तुमने क्या सारी उम्र मैकडोनल्ड में ही गुजारनी है? डोंट यू वांट टू गो फॉरवर्ड, आगे पढ़ना नहीं है? तो ये सारा डिस्कशन मेरे साथ हुआ, उसके साथ हुआ। सो उमर, ये जरा सा थोड़ा सा अपना रिफ्लेक्शन बताइए। बट आई फील एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट आई गेव टू माय टीनेज डॉटर। जैसे वो टीनेज में आई और वो उसमें आई, सो आई टोल्ड हर दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स। ठीक है, अगर तो तुमने करनी है शादी अभी बता दो, पढ़ना है तो फिर ये है कि यू हैव टू कीप फोकस्ड ऑन योर लर्निंग एंड योर एजुकेशन। एजुकेशन कंप्लीट करो एंड अगर आपको भी कोई पसंद होगा तो वी विल कंसिडर दैट एज पेरेंट्स टू सेटिस्फाई हर एंड टू सेटल हर। एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन टू बिल्कुल। हर कि टीनेज में ये सारी चीजें होती हैं। आपको हर दूसरा बंदा अच्छा लग रहा होता है एंड दैट इज नेचुरल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 22 साल 21 साल के ये लड़के हैं, इनको हम क्या कैसे रिफ्लेक्शन सिखाएं कि दे अंडरस्टैंड कि माँ बाप ने पाल पोस के यहाँ तक तो पहुंचा दिया एंड नाउ इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड। कि माँ बाप का थोड़ी काम है कि सारी जिंदगी वो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। सो द यंगस्टर्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और फिर दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि भाई आपको लगता है कि यू नीड अ पार्टनर, तो आप निकाह करें, मतलब अपने पेरेंट्स से कहें। वो ये भी एक चीज है कि जी मैं बिल्कुल कुछ बन बेशक। जाऊं तो मैं। तो इफ यू हैव दिस फीलिंग कि यू शुड हैव अ पार्टनर और अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, देन गो फॉर द राइट पाथ के निकाह करें आप सीधा सीधा, और आप अपनी फैमिली स्टार्ट करें एंड देन ऑफ कोर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट फैमिली। बट दिस इज अनदर ग्रोइंग प्रॉब्लम, और उस पर रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि वाई आर पीपल रनिंग अवे फ्रॉम marriage and responsibility, and why they want to actually waste time in these relationships. जी उमर, आपने मेरा क्वेश्चन सुना? आई एम सॉरी, मेरा शायद कनेक्शन स्लो हो गया था। उमर, आर यू स्टिल देयर?
आई हैव लॉस्ट उमर, फिर दोबारा मैं उन्हें ऐड करती हूँ एंड आई विल जस्ट चेक ऑन माई कनेक्शन ऑल्सो। हाँ उमर, आपका कैमरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक आपका कनेक्शन चला गया, मुझे लग रहा था मेरा कनेक्शन स्लो हो गया है। So we'll continue our discussion with Umar, and then I have another one of my very best mentees. So I'm just waiting for Umar to join. Let me just check कि क्या हुआ है, उमर कहाँ गए। So Umar नहीं आते हैं तो I'm waiting for Saima, then one of my very best mentees and one of the best teachers and counselors whom I know and who is part of Nurul Huda team as a volunteer. She is going to join me on the same topic, reflection, and she will be sharing her techniques and skills that she uses with her students, as well as with herself to improve her performance, herself as a person. So she will be sharing how does she reflect. So I'm just connecting to Umar, finding out if he's coming back. So उमर ने अपनी एग्जांपल्स बताई कि कैसे उन्होंने रियलाइज किया कि वो टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड हाउ ही चेंज्ड द स्ट्रेटजीज एंड हाउ ही डिड हिज एमबीए एंड देन हाउ ही स्टार्टेड वर्किंग। सो समटाइम्स हमारे अंदर सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं, हमारे अंदर सब हमारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं इसलिए कि हम चीज़ों को और अपनी सराउंडिंग्स को और जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते। So जब हम एनालाइज सही से नहीं करते तो of course then we are not able to address the problems that we are facing and we keep on blaming people, we keep on blaming luck, we keep on blaming all everything around कि even मौसम को भी हम blame कर देते हैं sometimes कि मौसम अच्छा नहीं था इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। So the thing is it is your inner determination, your own willpower to change। और देखें ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इनबिल्ट बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें कहा है हर चीज़ में कि गौर फिक्र करो। इवन व्हेन यू लुक एट द नेचर एंड एनवायरनमेंट अराउंड, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। आई रिमेंबर सिटिंग विद माई सन एंड ऑब्जर्विंग द एन एंट होल, उसमें से एंट्स निकल निकल के आ रही थी और वो खाना अंदर लेके जा रही थी। माई सन वॉज सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग दैट। So I do make sure कि मेरे बच्चे ये natural phenomena observe करें, because when you are observing these things, you learn very good lessons. So he saw the ants, उनके ऊपर से वो चीनी का दाना या जो भी वो अंदर ले जा रही थी वो गिर रहा जा रहा था और उठाए जा रही थी, एक दूसरे को हेल्प कर रही थी, but they were continuing. And the lesson is keep working hard, trying again and again and till you reach your goal. So अब ज़ाहिर है वो उस वक्त 7 साल का था, छोटा था बहुत, तो मैंने उसे फिर पूछा तो उसने भी ये बोला कि मम्मा ये बार बार लेके जाती हैं। तो मैंने कहा इससे आपको क्या समझ में आता है। सो द थिंग इज दैट इवन द वेदर दैट चेंजेस, एवरीथिंग हैज अ लेसन अराउंड, एंड इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी हमें कहा है कि गौर फिक्र करो, और जो लोग गौर फिक्र करते हैं वही जो है क्या कहते हैं कामयाब होते हैं। जी उमर। हाँ तो मेरा सवाल आप यहाँ पे वी गॉट डिस्कनेक्टेड। जी तो हम इन नौजवानों को कैसे रिफ्लेक्शन सिखाएं, इनसे क्या कहें, किस तरह से इनको जो है सही रास्ता दिखाएं। मतलब ये कि जाहिर है दे हैव टू improve their selves also. Even for living a life they need to have proper education, proper skills to be able to lead a happy, satisfied family life. Yes ma'am. असल में हम लोग, मैं हमेशा जितने भी टीचर से मिलता हूं मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को इमोशनली स्टेबल होने का बहुत ज्यादा आप कहा करें। हम लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है, जरा सी खुशी होती है हम लोग छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, जरा सा गम होता है हम जमीन पे गिर जाते हैं। तो इमोशनली स्टेबल होना हमारा पूरा गुस्सा आता है तो अपनी ही चीजें जलाना शुरू कर ऐसी है मैम।
तो हम असल में एज ए एनवायरनमेंट हमारा ऐसा हो चुका है कि हम लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है। अगर हमने किसी भी तरीके से कुछ बेहतर परफॉर्म करना है ना, तो इमोशनली स्टेबल होना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने अब ट्रेनिंग्स के जितने भी सेशंस होते हैं उधर मैं एक टाइम मैं रखता हूं इमोशनली स्टेबल करने के लिए तमाम लोगों को। मैं उन्हें कहता हूं कि यार, आपको खुशी हो, आप उसको जब्त करो, उसको देखो कि मैं कितना इसको बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने अंदर कितना इसको रख सकता हूं। जितना आप अपने अंदर रखोगे ना, वो खुशी का एहसास उसमें बाकी रहेगा। अगर आप जी। अपना गम है उसको भी आप अपने अंदर जज्ब करो। जब आप उसको जज्ब करोगे तो आपको उसका एहसास रहेगा, उसकी वजह को आप जान सकोगे और उसको ओवरकम करने का तरीका आप समझ सकोगे। इमोशनली स्टेबल होना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए अपने लिए किसी भी चीज के बारे में नॉलेज को गैदर करना है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो मैं एक प्रोडक्ट मैं इधर कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने कहा है कि हाउ टू सेल योर सेल्फ टू योर मार्केट, उसके अंदर हम लोग इमोशनली स्टेबल का पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं कि यार आपने किस तरीके से कोई आपको पसंद आया है, किसी के बारे में आपने सोचा है, आपने उसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना है। और सबसे पहली चीज जो मैं अपने ग्रेजुएट्स को, अपने कोवर्कर्स को और तमाम लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आज उठानी है इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। मुझे ये नहीं कहना कि नेक्स्ट पर्सन क्या सोच रहा है, मुझे ये नहीं कहना है नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है। अगर आप गलत देख रहे फॉल्ट है, वहां पर खड़े हो जाएं, अपनी टांग अड़ा दें, चाहे आपकी कितनी ही कमजोर टांग है, लेकिन आपने वहां पर अड़ा देनी है और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और लोगों को यह बताना है कि यार ये नहीं है ठीक। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, असल में बुरे लोग जो है ना वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। मैं हमेशा ये ग्रेजुएट्स को कहता हूं कि यार बुरे लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं अपना। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग अपना काम नहीं कर रहे। अगर अच्छे लोग भी उतना ही अपना काम करना शुरू कर देना जितना बुरे लोग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अच्छे अच्छे लोग लोगों को खामोश रहते हैं। अच्छे लोगों को लोग काम करने नहीं देते, उनको तंग इतना किया जाता है कि बेचारे गिव अप मैं कर देते हैं। मसला ये है कि हमने ये सोचना ही नहीं है कि हमारे लिए आसानी होगी। ये तो पता है ना कि दुनिया मुश्किल है अच्छे के लिए। जब दुनिया मुश्किल है और अल्लाह ताला ने बता दिया है कि यार तुम अच्छा करोगे, लोग तुम्हें रोकेंगे और एक वक्त ऐसा होगा कि अच्छा करना अंगारों पे चलने के बराबर होगा, ये पता है। हम्म, ऐसा ही आप है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें देखना चाहता हूं कि वो उस वक्त जो अंगारों पे चल सकते, दीन के ऊपर अमल करने के लिए अंगारों पे चलेंगे, वो कैसे होंगे, उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव किस तरह का। हम्म। आप लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, चाहे वो मुल्क को बेहतर करने से हो, चाहे वो आपकी क्लास में। हमारे एक बहुत जबरदस्त किस्म के ट्रेनर है जिनसे आजकल मैं बहुत लर्न कर रहा हूं, नईम साहब उनका नाम है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि यार आपके तमाम एनवायरनमेंट में ना नेगेटिविटी आप तक खुद आएगी, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहीं पर कुछ गलत हो रहा होगा, लोग आपको बताएंगे कि यार वहां पर गलत हो रहा था, लोग आपको बताएंगे कि यार यहां पर किसी को तकलीफ हुई, लोग आपको बताएंगे कि यार वहां पर कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे। लेकिन जहां पर अच्छा होगा ना, हम लोग उसको आगे नहीं फैलाते। तो हमें आज से जितने लोग मेरी आवाज सुनेंगे या आपके तवज्जुह से या मेरे तवज्जुह से जो भी सुन रहे हैं, प्लीज अच्छी बातों को आगे फैलाएं, अच्छी बात सुने, अच्छी बात देखें, अच्छी बात बोलें। ये तीन अगर चीजों का हम सिंक्रोनाइज कर देना, तो हमारा दिल जो है वो अच्छा सोचना और अच्छा समझना शुरू कर देता है। दिल कनेक्ट होता है तो फिर माइंड कनेक्ट हो जाता है। ये पांच चीजें हैं हमारी, हमारा मुंह, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिल और फिर हमारा दिमाग। ये सबसे आखिर में है दिल और दिमाग का ताल्लुक। सबसे पहली चीज क्या है, हम क्या बोलते हैं, बल्कि सबसे पहली चीज है हम क्या देखते हैं, फिर है हम क्या सुनते हैं, फिर है हम क्या बोलते हैं, देन हम क्या, हमारा फील क्या होता है, देन हम क्या सोचते हैं। इन पांच चीजों को अगर हम सिंक कर लें और हम कह लें कि यार हमने अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा महसूस करना है, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मैंने बात की, अगर हमें ये पता चल जाए कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को बेहतर करना, अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो बंदा भी ये कहता है कि मैंने गर्लफ्रेंड बनानी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वो, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि कोई बंदा गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं जाएगा। लोग क्यों गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट ये डेवलप हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनको ये पता चल जाए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ दे हैव ए रिलेशन, दे हैव टू बी ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फॉर हिज लाइफ, फॉर हर लाइफ। अगर उसे ये पता हो, मैं आपको 100% श्योरिटी कह सकता हूं कि वो उस रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाएगा।
वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक एनवायरनमेंट में चीज चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये माइंडसेट में दोनों के होता है, एक बंदे के नहीं होता। जो बंदा इस रिलेशनशिप के अंदर है ना, दोनों को ये पता है कि ये एक दिन खत्म होने वाला है, इसका कोई म्याद नहीं है, कोई चीज नहीं, इसलिए वो एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं ना। वरना वो ओपन एंडेडली सबके सामने बताएं कि यार हमारा रिलेशनशिप है। जो भी चीज हिडन होगी, जो भी चीज लोगों से छुपाई जाएगी, समझ ले दोनों के दिल में चोर है। जब दोनों के दिल में चोर है तो तीसरा बंदा शैतान है, और शैतान अपना काम करके जाएगा। तो सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आपने भी कहा ना कि सबसे पहले देखना और सुनना। हमारे यहाँ तो देखना सुन, कुछ लोग देखते और सुनते भी नहीं, पहले ही बोलना शुरू हो जाते बोलना हैं शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी, नहीं तहकीक नहीं करते ना, उन्होंने खुद आंख से देखा होता है ना उन्होंने सुना होता है, लेकिन ये कि उन्हें जैसे ही कुछ चीज नजर आई उस पर शुरू हो गए, विदाउट नोइंग द बिल्कुल बैकग्राउंड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वी जस्ट वांट टू से आउट जो भी दिल में यस भड़ास मैम। है, जो दिमाग में आ रहा है, विदाउट थिंकिंग। और फिर वही बात है कि इसके वही चीज तीन, अगेन इफ यू रिफ्लेक्ट देन यू पास इट थ्रू थ्री बैरियर्स के क्या बिल्कुल ये इज इट काइंड, इज इट राइट, डज इट नीड टू बी सेड, इसको सर कहने की बहुत जरूरत भी जबरदस्त बात, है। बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बात। सही। तो और कुछ उमर कुछ कहना चाहेंगे? फिर साइमा इज इन द वेटिंग, फिर मैं साइमा को ऑनलाइन लूं, साइमा भी सही। बात करेंगी। मैं बहुत ज्यादा आपको थैंक यू कहूंगा सबसे पहले तो, कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया आप अपने साथ बात करने का और आपकी ऑडियंस से बेसिकली कम्युनिकेट करने का। मैं आपके ही तवज्जुह से एक चीज कहना चाहूंगा। मेरा ड्रीम था कि मैं तमाम ग्रेजुएट्स को जो है वो जॉब ऑफर कर सकूं, और इस वक्त मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जहां पर मेरे पास 200 प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मुल्तान से कोई भी बंदा है जिसने एफए एफएससी किया हुआ है, वो मेरे पास आ सकता है। बिजनेस सिटी प्लाजा में हमारा ऑफिस है। आए, काम को समझे और पहले दिन से कमाना शुरू कर दे। सही है। और मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि उमर के साथ हम मुल्तान में यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका मकसद भी यही है कि कम्युनिटी लीडरशिप को इनकरेज किया जाए। जो बच्चे हमारे हैं और उनमें लीडरशिप स्किल्स हैं, इनफैक्ट सब में ही होते हैं, उनको उभारा बेशक जाए और बेशक। उन्हें उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो आगे अपने फ्यूचर के लिए एक सही डायरेक्शन सेट कर सकें और अपने आप को एक करामत शहरी और फैमिली मेंबर बना सकें। बना सके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।